بھارتی جارحیت کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں اہم وفد آج چین جائے گا۔ اسحاق ڈار کو دورے کی دعوت ان کے چینی ہم منصب وانگ ای نے دی ہے۔ ملاقاتوں میں خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال پر چینی قیادت کے ساتھ غور کیا جائے گا۔ وفد میں مختلف حکومتی حکام شامل ہوں گے جو علاقائی امن و استحکام کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ بیجنگ میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی بھی ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں علاقائی سیاسی صورتحال، باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ دورہ پاک چین اعلیٰ سطح کے روابط کا تسلسل ہے۔ دورہ دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی عکاسی کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارتی وزیر خارجہ کا حملے کی پیشگی اطلاع کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا، مجھے نہیں پتا جے شنکر نے حملے کی پیشگی اطلاع کسے دی۔ سیز فائر رابطوں کے عمل کا کامیابی سے آغاز کیا گیا۔ سیز فائر رابطوں میں صرف جنگ بندی نہیں، طویل حکمت عملی ہوتی ہے۔ پاکستان نے بھارت کے سفارتی اقدامات کا بھی بھرپور جواب دیا۔ کچھ ممالک کہتے تھے پہلگام واقعے پر بھارت بینچ لگائے گا۔ جواب میں کہا گیا کہ ہم بھرپور جواب دیں گے۔ پہلگام واقعے کی وجہ بنانے کی بھارتی عزائم کچھ اور تھے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی میڈیا نے اتنا شور مچایا کہ یہ پلوامہ 2 لگ رہا تھا۔ بھارت آج تک پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکا۔ ہم نے مختلف ممالک کو بتایا کہ پاکستان پہل نہیں کرے گا جب تک بھارتی طیاروں نے حملہ نہیں کیا۔ ہم نے جواب نہیں دیا۔ 9 اور 10 مئی کی شب پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بھارت کے 6 طیاروں نے ہم پر حملہ کیا، وہی 6 طیارے گرائے گئے۔ 7 مئی کے بعد کئی ممالک نے درخواست کی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ کوئی پاکستان کا پانی روکنے کی جرت نہ کرے۔ بھارت نے دریائے سندھ کا پانی روکا تو نتائج دہائیوں طویل ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مختلف میڈیا اداروں سے گفتگو میں کہا کہ کوئی پاگل شخص ہی 24 کروڑ عوام کا پانی روکنے کا سوچ سکتا ہے۔ حکومت پاکستان پانی کے معاملے پر بھارت کو واضح کر چکی۔ فوج کی طرف سے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ خطے اور پاکستان میں دہشت گردی کا اصل سرپرست بھارت مودی تحقیق چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ پاک فوج کی اولین ذمہ داری ملک اور سرحدوں کا تحفظ ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ہر قیمت پر کریں گے۔ پاکستان نے سخت اور مؤثر جواب دے کر دشمن کو آئینہ دکھایا۔ بھارت کا کوئی شہری ہدف متاثر نہیں ہوا۔ ہمارا جواب متوازن اور منصفانہ تھا۔ پاکستانی قوم اور افواج نہ کبھی جھکی ہیں نہ جھکائی جا سکتی ہیں۔ ترجمان بھارتی وزارت دفاع نے خود جنگ بندی کی درخواست کی۔ پاکستان نے امن کے لیے جنگ بندی کی پیشکش قبول کی۔ ہم پرتشدد نہیں، سنجیدہ قوم ہے۔ پہلی ترجیح امن ہے۔ امریکہ جیسی بڑی طاقتیں پاکستانی عوام کے جذبے کو بہتر سمجھتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان پاک فوج نے بھارت کے 6 طیارے مار گرانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں تصدیق کر سکتا ہوں 6ٹھا طیارہ میراج 2000 ہے۔ ہم نے صرف طیاروں کو نشانہ بنایا۔ ہم مزید طیارے گرا سکتے تھے لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے مسلح افواج پیشہ ور ہیں اور ہم ان وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہم سیاسی حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق 20 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ گلستان بازار میں جبار مارکیٹ کے قریب ہوا۔ دھماکے سے متعدد دکانیں تباہ، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لیوز ذرائع کے مطابق دھماکے کے باعث کئی دکانوں میں آگ بھی لگ گئی۔ دھماکے سے ایف سی قلعے کی دیوار کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا۔ شدید گرمی کے بعد راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور بارش، مٹی اور گرد و غبار کا طوفان۔ کئی علاقوں میں درخت اکھڑ گئے، تار ٹوٹنے سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ اسلام آباد میں بھی متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ پشاور میں چھتیں، دیواریں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ بارش کے بعد گرمی کی شدت کم ہو گئی، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ چلاس، مانسیرا، بالاکوٹ، ہری پور، کہوٹا، مری کے علاقوں، الیوٹ، کلنڈانا، موہڑا شریف روڈ پر درخت گر گئے۔ ایک نوجوان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ کئی شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند، سوابی اور اٹک سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں بھی بارش، بالائی علاقوں میں ژالہ باری متوقع، میدانی علاقوں میں بھی آندھی، ہلکی بوندا باندی کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کا ژالہ باری کا انتباہ، غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔
मार्का हक पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तारीखी कामयाबी का जिक्र, ऑपरेशन के हकाइक, सैटेलाइट तस्वीर मौजूद, पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश। डोजियर में भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम और फेक न्यूज़ के शवाहिद भी मौजूद। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने दिफा और जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का आगाज़ किया। पाकिस्तान अमन का आलमबरदार अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर-ए-आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। ज़रा के मुताबिक भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकात करेंगे। भारत याद रखेगा इसने किस कौम को ललकारा, आर्मी चीफ की क़यादत में ऐसा जवाब दिया। भारत क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। बुज़दिल दुश्मन ने रात को हमला किया। पाक फ़ज़ाइया ने 6 तैयारे मार गिराए और भारत फ़ौज को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। हम यहाँ अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसले किया। आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों को अमली जामा पहनाया। पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका इक़दार की दरख्शां अलामत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तुर्की के सफ़ीर से मुलाकात में इज़हार ख़याल। कहा पाकिस्तान तुर्की की भारतीय जारहियत पर सिफारती, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक सतह पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रगुजार है। सदर उर्दवान का कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, दिलों में नक्श हो चुका हूँ। तुर्की के भारतीय जारहियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए तुर्की के साथ इश्तराकी कार बढ़ाएंगे। पंजाब तुर्की के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक तुर्की ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग का सबब बन सकता है। बरतानवी पार्लियामेंट का इंतबाह। बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया भारत मसला कश्मीर के दो तरफा हल पर बज़द। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुदाखलत से मसला कश्मीर के हल का ख्वाहिशमंद है। भारत ने पहलगाम के मशकूक वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। भारत का तर्ज अमल इलाकाई अमन के लिए शदीद ख़तरा है। पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी, ज़ब्त और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे में रहते हुए अपना दिफा किया। भारत की जानिब से ताकत, धमकी और इल्ज़ाम तराशी का सहारा लिया गया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों को मुसलसल नज़रअंदाज करते हुए मसला कश्मीर को आज तक हल नहीं होने दिया। आलमी बरादरी ने भारतीय जारहियत का सख्ती से नोटिस ना लिया तो आइंदा ऐसी मुहिम जोइयां बड़े पैमाने पर तबाही का पेश खैमा बन सकती हैं। भारत को एक और धचका, अमेरिका का भारत के आमों की शिपमेंट्स लेने से इनकार। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत से आमों की 15 शिपमेंट्स अमेरिका पहुंची, लेकिन दस्तावेजात मुकम्मल ना होने की वजह से भारतीय हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतासरा शिपमेंट्स को 8 और 9 मई को मुंबई में ताबकारी के अमल से गुजारा गया था, लेकिन इन्हें अमरीकी एयरपोर्ट लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा पर मुस्तरद कर दिया गया। बरामद कुनिंदगान से कहा गया वो या तो कार्गो को तबाह कर दें या इसे दोबारा भारत को बरामद करें। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे ने भारतीय जमहूरी दावों को मशकूक बना दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया या रियासती प्रोपेगेंडे का हथियार बन गया है। गजा में धमाकों की वीडियोस पाकिस्तान पर हमले के तौर पर चलाई तमाम खबरों का ना कोई सबूत था, ना कोई आज़ाद तस्दीक। भारतीय मीडिया ने इन दावों को ऐसे पेश किया जैसे ये हतमी हकाइक हों। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की खबर गलत थी। भारतीय हुकूमत ने सच बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया। हुकूमत की दरख्वास्त पर 8,000 से ज़ायद अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स की अक्सरियत पाकिस्तानी है। भारतीय सिफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी, किसी मुल्क का मोदी की तायद से गुरेज। आलमी बरादरी ने हिमायत ना करके भारत की नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठा दिए। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। मुतादिद ममालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। BBC का कहना है पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत को आलमी तन्हाई का सामना है। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। जंग बंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। अमरीका ने जंग बंदी का हुक्मनामा जारी किया जबकि भारत लाइल्म रहा। भारत की
लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशत गर्दी का जिक्र तक न किया। आलमी रहनुमाओं का फोकस दहशत गर्दी नहीं बल्कि कशीदगी कम करना था। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया, आने वाले बजट में आवाम के लिए खुशखबरी होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की एमकेएम रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इत्तेहादियों की मुशावरत से बजट देंगे, बजट में आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया, पूरी कौम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। गवर्नर सिंध बोले, नून लीग के वफ्द के साथ मसाइल पर गुफ्तगू की। दौरान जंग IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF के सामने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। भारतीय डायरेक्टर ने कोशिश की IMF से किस्त ना मिले मगर इसे नाकामी हुई। फारूक सत्तार ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करना चाहिए। माशी अहदाफ बेहतर हुए हैं। शहबाज शरीफ ने वादा किया है कि K4 मंसूबा दिसंबर 2026 में मुकम्मल होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट तजावीज़ पर मुज़ाकरात का आज से आगाज़। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द आज इस्लामाबाद पहुँचेगा, जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नए माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की मुख्तलिफ तजावीज़ IMF से शेयर की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते मुकम्मल हुए थे। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में सारे उमूर और वर्चुअली मीटिंग्स में ज़ेर बहस आए हैं। अफगान ट्रांजिट में नाजायज मुनाफाखोरी रोकने के लिए नया इकदाम। FBI ने 10% प्रोसेसिंग फीस आयद कर दी। 5 नए इक़साम की अशिया पर फीस लागू होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़राई आलात, क्रेनें, डेटा मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स फीस की जद में आएंगी। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ पर भी 10% प्रोसेसिंग फीस लागू होगी। पॉलिसी से टैक्स वसूली में बेहतरी और शफाफियत का इम्कान। हुकूमत का अफगान ट्रांजिट की आड़ में गैर कानूनी तिजारत पर क्रैकडाउन। अफगानिस्तान में कम कस्टम ड्यूटी का नाजायज फ़ायदा बंद करने की कोशिशें जारी। वफाक बजट से कबल NFC इजलास बुलाकर जमशुदा अजला का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल करे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहा, नेट हाइडल मुनाफी के बकायाजात भी बजट से पहले अदा की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा बजट में जमशुदा अजला को रिलीफ देना चाहती है। वज़ीर आला ने इन दोनों मामलात पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, जिनका ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जमशुदा अजला की तरक्की से दहशत गर्दी में वाज़ेह कमी आ सकती है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिए फंड्स का ऑडिट कराए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुतालबा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मनसूबा करप्शन और कमीशन माफिया की नज़र हो गया है। मनसूबे के PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मनसूबा बनता ही नहीं। कोई मनसूबा बन भी जाए तो हिस्से वसूल करने वालों की लड़ाई की नज़र हो जाता है। जब तक KPK हुकूमत पिछले फंड्स का हिसाब नहीं देती, वफाक इनको मजीद एक ढेला ना दे।